Hello everyone, welcome to Sketch School of Art and Creativity. So the biggest question that is there in the mind of all the architecture aspirants, which everyone is asking through comments, through messages, through calls, is that when is the NATA 2023 registration going to begin? क्या dates होने वाली हैं exactly, registration कब से start होने वाला है? So in this video, I am here to answer this particular problem, this particular question, and help all of you out. So that instead of focusing on this particular problem, you can actually focus on the preparation of the examination and achieve your target of getting into the best colleges that are there in India for architecture. In this video, we are not going to just discuss the dates and the expected timings, but we'll also discuss about the preparation strategy, how to prepare and crack the NATA examination. So do not skip any part of this video and stay tuned. So guys, the registration of the NATA examination can start any day now. The expected dates is between 10th to 15th of March. And today is 10th of March. So within the next 5 days now, any day, the registration can start. But you need not think so much and be tense about this. Instead, you should focus on your preparation. Just subscribe to this channel, press the bell icon, and we'll make sure whenever the registration starts, we'll be the first one to inform you. We'll not just tell you that the registration has started, we'll also help you with all the processes and steps involved in the same. So do not forget to press the bell icon and receive the notification for whenever the NATA 2023 registration starts. So guys, last year, that was 2022, the NATA registration started and the NATA brochure was released on 12th of March. And usse pehle 28th of February, that was in 2021. So this is the approximate dates जिस पे release होता है. So as you know, our 10th March है. So for sure within the next 5 days 99% chances हैं that a registration will start. The brochure with all the information regarding the syllabus, exact syllabus and everything will be definitely released. Now regarding the exam date, registration is one thing and the examination date, exam कब होने वाला है, is another topic. So again, the expected date for the first attempt of NATA examination, जिसका again 90 to 99% chances हैं, will be between 12th of April to 20th of April. So you can expect mid-April में 12 से 20 April के बीच में the examination of the first attempt of NATA will take place. The second attempt always happens after a gap of 1 month. So April के बाद May will be a gap. The second attempt will be in June. Then the third attempt will be either in the July month or the August month. So yes, these are the 3 months. You have April, you have June, then you have July or August for the 3 attempts of NATA 2023. Now see guys, the registration जब start होना है, exam जब conduct होना है, that is not in your hands. I have told you the approximate dates इसी के आसपास, इसी के बीच में होगा. You can rely on that. The main thing is preparing for the examination and getting a good score in the NATA examination. Okay guys, so now comes the important part, discussing about the preparation strategy of the examination, discussing how to prepare for the examination, how to score good marks, how to score 160 plus in this less time. Suppose you are focusing on the first attempt, that is in April. So approximately you have a month to prepare now. So इस एक महीने में, in this 1 month, how can you prepare? What are the topics you should cover? What should be the exact strategy to get into the top colleges by getting the highest marks possible as per your potential in the examination? So guys, before starting that, you first need to understand the exact syllabus of the examination. Without understanding what comes in the examination, what is the portion, what are the different topics, what is the marks distribution, you cannot directly skip to the preparation strategy. So let's understand the strategy, the preparation that you should do along with the syllabus that is there. So guys, the NATA examination is an examination in which they'll test you on various topics, not just a single thing like like maths or drawing or your imagination or your visualization, but a lot of topics. Every topic has some weightage, and the combination of a lot of topics combines a total marks of 200. So yes, NATA 200 marks का होता है. And as per the notice and the information released by COA, that is the Council of Architecture, the NATA 2023 examination is again of 200 marks with 125 questions, and 1 markers, 2 markers, 3 markers are going to be there. There won't be any drawing. 100% ये confirmed है that the examination is going to be completely computer based. इसका मतलब ये है, the type of questions that you are going to have will be like match the following, fill in the blanks, MCQ questions, multiple select questions, but जो भी करना होगा, whatever you have to do will be on a PC screen. Nothing to be done on a sheet of paper, ना कोई drawing, ना कोई sketching, only the computer based examination. Now guys, from the past 2 to 3 years, जब से the drawing portion has been removed. So let me tell you the exact story first of the NATA examination. So in the year 2020, when the corona thing started, ठीक है, in that particular year the examination shifted from that going to the center by giving to your home. So 2020 में जिन भी लोगों ने examination दिया है, they gave the examination by sitting at their own home. ठीक है, so in that examination definitely the drawing portion was removed and the syllabus was changed at the very last moment. But after that, जो 21 and 22 की बात करें, the past 2 years, the examination pattern has been constant and 99.99%
that exact examination pattern, that exact thing is going to be repeated in the year 2023. So jab se the drawing part has been removed from the NATA examination, because till there was a time before 2020 that out of 280 marks was for drawing, and even there was a time when 100 marks for drawing before that. So drawing was, having a good number of marks, good number of weightage in the examination. But jab se the drawing portion has been removed, the number of topics that are there in the examination, the type of questions have been a lot more to cope up with that drawing, because drawing was something जिसके लिए काफी preparation चाहिए होती थी. The students had to practice a lot, had to go to coachings and learn a lot. Then only they could perform good in the drawing section. So ताकि examination का level ना गिरे, to maintain that level, that difficulty level in the examination, a lot of new topics, a lot of things have been added in the NATA examination. Okay, so the main question that a lot of you have regarding the NATA examination, maybe क्योंकि Google पे लिखा होता है that physics, chemistry and maths NATA में आता है, नहीं आता है तो what comes, what does not come. So let me tell you this very very clearly. Chemistry first of all is not there at all. Chemistry बिल्कुल नहीं आता है. Physics भी basic physics आता है. Now basic physics का मतलब क्या होता है? It means that this is not your 11th 12th वाला physics जो तुम बोर्ड में करके आती हो, numericals and stuff. It will test your basic knowledge, जो एकदम basic conceptual knowledge होती है, which you study maybe 9th 10th 11th में भी 12th में भी. तो जो basic conceptual knowledge होती है, based on that questions are there. क्यों tough questions या क्यों school वाले questions नहीं आते हैं? Because not only the 11th-12th people are giving the NATA examination. जिन्होंने PCM से 12th करी है, केवल वो NATA exam नहीं देते हैं. The students who are diploma holders, who have done even graduation, so वो लोग भी देते हैं. So that is why this physics is something तो सबको पता होना चाहिए, केवल PCM वालों को नहीं. And then comes the maths part. Maths में again the people who think 11th-12th वाली maths आती है, school maths आती है, it is not there, not at all there. जो maths examination में आती है, that is entirely of 16 to 18 marks, सारे 1 markers होते हैं. एंड जो ये मैथ्स आती है, दिस इज व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो सबसे पहले जो 10 मार्क्स का आता है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ये जो तुम्हें सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, ऑन द टॉपिक्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन आर अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, व्हिच अगेन इज कॉमन इन अ लॉट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन एंट्रेंस, NID, NIFT, UC टू गवर्नमेंट एग्जाम्स, रेलवे एग्जामिनेशंस, बैंक एग्जामिनेशंस, MBA एग्जामिनेशन, सब में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यूजुअली आता है. तो द सेम इज देयर इन द NATA एग्जाम ऑल्सो, बट यू कैन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा easier लेवल पे probably. So all these topics that you can see are a part of the syllabus, and इसमें से कुछ you will find are common to your 9th and 10th 8th स्कूल वाला मैथ जो तुमने basic 7th 8th 9th 10th में पढ़ा है, like HCF LCM हो गया, boths and streams, problems on ages, तो ये सब तुमने probably पढ़ा होगा. And some are there, actually most are there which you have not studied in school. अब इनके लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है? You need to know the tricks, you need to do a lot of practice. But definitely you need a class, or you can say you need preparation on all the topics. तुम्हें tricks and concepts पता होने चाहिए. Secondly, तुम्हें right questions की practice करनी है, सारे previous year papers से भी questions करने हैं. If you're doing the combination of all these things, then definitely you can score 10 on 10 in this particular topic. Let me show you a few questions. So in our institute we teach students for every topic, not just this, even जो भी examination में आता है सब कुछ हम अच्छे से पढ़ाते हैं, सबका practice भी होता है. So I'll show you from there only. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हम बात करें, सो डेफिनेटली सब पे क्लास होती है. फिर ना वी गिव अ टेस्ट ऑन ऑल द टॉपिक्स. इससे क्या होता है, लेट अस ओपन अ टॉपिक ऑन वन टेस्ट. सो दिस हेल्प्स यू टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलाइक टू द एग्जामिनेशन. तो एक बार तुमने पढ़ लिया, एक बार तुमने सब कर लिया, ठीक है. देन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे देन डेफिनेटली ना ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और ना ही तुम एग्जाम में स्कोर कर पाओगे. So that is why I am just showing you this right now to show the questions, type of questions that are there. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो वॉट एवर टेस्ट यू हैव ना, these all are time based. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट मी शो यू द सॉल्यूशंस आल्सो. तो सबमिट करने के बाद ना सॉल्यूशंस भी दिखते हैं. सो आफ्टर सबमिटिंग यू कैन सी द सॉल्यूशंस एज वेल. ठीक है, राइट, ठीक है. सो बेसिकली ना तुम्हें सारे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं टू सिक्योर दीज 10 मार्क्स. सारे 1 मार्कर रहते हैं. द सेकेंड पार्ट दैट यू हैव इज ज्योमेट्री. अगेन ज्योमेट्री कौन सी आती है? 8th 10th में जो तुमने पढ़ी है, एक वो वाले क्वेश्चंस आते हैं, और एक कहीं ना कहीं जो एग्जाम लेवल वाली ज्योमेट्री है, जो स्कूल की नहीं बट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली ज्योमेट्री है. थोड़े क्वेश्चंस वैसे भी आते हैं. तो आप सपोज 6-7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 3-4 उसमें से इजी होंगे. जिन्होंने स्कूल में पढ़ा है, याद है, वो कर लेंगे. जिन्होंने बेसिकली स्कूल के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने जरूरी है, और कुछ तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल का, सो दैट यू कैन स्कोर ऑलमोस्ट आउट ऑफ 8 6 5 मार्क्स ला पाओ. Okay, so definitely इसका भी we conduct classes, and the mathematics teachers who have a lot of experience, 40+ year experience, they teach these topics so that you guys have a good grasp. Let me also now show you. So this now what you can see on the screen is the practice we provide, the PDFs we provide for the geometry section.
So again, practice करने के लिए भी you need material for concepts also. So that is also there. नाउ गाइज, अगर हम बात करें 1 मंथ का तुम्हारे पास टाइम, तो डेली तुम कितना कैसे प्रैक्टिस करो. अब वी आर मेकिंग अ वीडियो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो उसकी बात करते हैं. सो गाइज अप्रॉक्सीमेटली अगर 1 मंथ की हम बात करें, 1 मंथ में हमें सारा कैसे करना है. सो विल डिवाइड, आई हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कितना टाइम किस टॉपिक को दो, कितना डेली पढ़ो, सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन. तो उसकी थोड़ी बात करें. सो अगर तुम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को डेली इफ यू नीड टू गिव समवेयर बिटवीन 1.5 to 2 hours. So definitely तुम इतना टाइम दे रहे हो, एंड बाय द एग्जामिनेशन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर 10 on 10, नॉट 10, चलो 9-8 तो ले ही आओगे इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो अब ज्योमेट्री की बात करूँ तो ज्योमेट्री में इंक्लूसिव है ये, तो तुम्हें ये 2 hours जो देने हैं, सपोज तुम 2 hours दे रहे हो, तो यू गिव योर 1.5 hour टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हाफ आवर टू ज्योमेट्री. सो डेली 2 hour दो टिल द एग्जामिनेशन टू दिस 16-18 marks. डेफिनेटली विल बी एबल टू क्रैक इट बाय द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक फिजिक्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ना ही बोर्ड्स जैसे आते हैं, ना ही जेई मेन के लेवल के आते हैं. ठीक है, सो दैट इज वाई ऑल्सो ना टू गेट एन आइडिया व्हाट यू कैन डू इज टू गेट एन आइडिया ऑफ द बेसिक फिजिक्स क्वेश्चंस, टू गेट एन आइडिया ऑफ दिस बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस. आई विल टेल यू वन थिंग, यू कैन गो टू अ वेबसाइट, आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे जाके फिर क्लिक ऑन फ्री कंटेंट. ठीक है, तो क्लिकिंग ऑन फ्री कंटेंट यू विल फाइंड दीज ऑप्शंस. यू कैन अवेल फ्री नाटा प्रीवियस ईयर पेपर्स, फ्री जेई BIAC प्रीवियस ईयर पेपर, फ्री जेई BIAC मॉक टेस्ट, एंड ऑल्सो फ्री नाटा मॉक टेस्ट. सो इफ यू अवेल फॉर अ फ्री नाटा मॉक टेस्ट, यू विल बी एबल टू गिव अ मॉक टेस्ट. तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस, कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न आता है. एंड एक्चुअली दिस विल बी ऑनलाइन टेस्ट. तो तुम 3 घंटे अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल फोन पे टाइमर बेस्ड में नाटा का एग्जाम दोगे. सो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि तुम किस लेवल पे हो, and you'll also be able to understand the examination pattern. So you know basic physics का, तो you can revise your concepts, स्कूल की बुक्स उठा के concepts revise करो. अगर ज़्यादा प्रिपरेशन में नहीं करनी है, थोड़ा concept revise करो, नहीं भी करो, this is not a lot in your hands. तो जितना रिवाइज करना चाहते हो कर सकते हो. इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि हाँ अभी तो 12th दी है, अगर जिन्होंने रिसेंटली यू रिमेंबर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन दैट विल बी एनफ. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज रीजनिंग. ठीक है, रीजनिंग इज अ टॉपिक विच हैज अ गुड अमाउंट ऑफ वेटेज. अगेन 15 से 20 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है. एंड यू हैव 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग. रीजनिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एक है वर्बल रीजनिंग, एक है लॉजिकल रीजनिंग, एक है नॉन वर्बल रीजनिंग. अब क्या होता है ना, अगर जैसे वर्बल रीजनिंग की बात करें, सो फॉर ऑल दीज टॉपिक्स ना you again need to learn the tricks, the concepts. You need proper guidance from a teacher, and then again तुम्हें वो practice करने हैं सारे, ताकि तुम you can gain the confidence. And practice के बिना concept clarification is the first step, practice is the second step, third is the mock test जिसमें एक final practice हो. तो practice भी stages में होनी चाहिए concept clear होने के बाद. So that is why again this is also essential. सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग की भी हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में भी यू हैव दीज टॉपिक्स. इसमें भी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझने हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है. नॉन वर्बल रीजनिंग इज समथिंग यू विल फाइंड कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स तो नहीं मिलेंगे, बट इसमें मेनली कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का रोल रहता है. सो वी प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स इन अ लॉट ऑफ डिटेल. बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा क्लासेस टू कवर ऑल दिस. अच्छा, अब रीजनिंग में कितना टाइम तुम दो अगर यू आर प्रिपेयरिंग. सो डेली अगेन यू विल हैव टू टेक आउट एटलीस्ट वही 1.5 से 2 hours तो निकालना ही पड़ेगा. इससे मिनिमम 2 निकालो. 2 hours गिव डेली फॉर रीजनिंग. स्टार्ट विद वर्बल्स, किसी से भी स्टार्ट करो. एक अपना टाइम वो 2 hour को कैसे भी डिवाइड करो. तीनों टाइप की रीजनिंग कवर करनी है टू सिक्योर दीज मार्क्स. नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज वर्बल एबिलिटी, जिसका अगेन अच्छा खासा वेटेज है. ठीक है, सो 15 से 20 मार्क्स का ये आता है. 20 का तो आ ही जाता है, 25 का भी एक्चुअली इफ यू सी इन द लास्ट प्रीवियस ईयर्स, तो 25 मार्क्स तक का भी दिस कैन कम. इसमें क्या आता है, यू हैव अ शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशंस और सेंटेंस कंप्लीशन, स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. तो तुम्हारा इंग्लिश एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी को टेस्ट करता है. इसमें भी तुम्हें बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए. द स्टूडेंट्स आर गुड इन इंग्लिश, जो रिटन इंग्लिश में, स्कूल वाली इंग्लिश में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं इन द स्कूल टाइम्स. फॉर दोज यू विल डेफिनेटली एबल टू स्कोर गुड. जिनका इंग्लिश कहीं ना कहीं थोड़ा वीक है, दे फील कि जो रिटन इंग्लिश है, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं उसमें यू आर नॉट सो गुड. यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड इट इन योर स्कूल कि तुम कैसे हो, इंग्लिश एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं. तो जो इतना अच्छे नहीं है उनको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने हैं इंग्लिश के, और अगेन प्रैक्टिस भी करनी है. एंड ऐसा नहीं है जो अच्छे हैं उन्हें प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस सबको करनी है. यू विल फाइंड शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशंस एंड सम थिंग्स यू डोंट हैव इन स्कूल. दीज आर ओनली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. Let me also give you a brief, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ. If you'll check our study material, so we give a lot of short comprehension tests. Even we have listened this from our students in the past years. काफ़ी सारे comprehension सेम भी आते हैं in the NATA examination in from our study material. So ये comprehensions 1 से लेकर you can see till the amount of 43 are there. So daily you get a comprehension to practice. इससे definitely you are almost perfect in comprehensions. Even you will find a lot of tests on verbal ability. Combined test है. So let me show you कैसे questions exam में आते हैं.
सो यू कैन सी जैसे 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज एरर वाला क्वेश्चन, देन यू हैव क्वेश्चंस ऑन द क्वेश्चन choose the word which expresses the best meaning of the given word, sort of a synonym you can say. Then ये again इसमें एक phrase को replace करना है word से. You have antonyms, opposite words बताने हैं. Same like before. Fill in the blanks आते हैं, कौन सा best word होगा इसके लिए. Wrongly spelt words choose करने होते हैं. ऑर्डर में भी यू आर गिवन अ लॉट ऑफ फ्रेजेस हाउ यू नीड टू फॉर्म अ सेंटेंस, द प्रॉपर सीक्वेंस बताना होता है. सो अगेन ऑल ऑफ दीज आर टेस्टिंग योर वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश स्किल्स बेसिकली. सो अब इंग्लिश एबिलिटी आता तो अच्छे खासे मार्क्स का है, 20 से 25 मार्क्स तक का भी आ सकता है. सो कितना टाइम दें? डेली आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 30 मिनट्स. एटलीस्ट 30 मिनट्स यू नीड टू गिव टू द इंग्लिश एबिलिटी पार्ट. इतना डेली प्रैक्टिस करोगे 1 मंथ तक, 2 मंथ तक, 3 मंथ तक, डेफिनेटली विल इंप्रूव अ लॉट. इसके बाद अगेन हमारा एक इंपॉर्टेंट आता है बिल्डिंग एनाटॉमी एंड आर्किटेक्चरल वोकैबुलरी. इसमें क्या होता है ना, देयर आर सम टर्म्स व्हिच आर देयर इन आर्किटेक्चर. काफी सारे टर्म्स है, नॉट सम, अ लॉट ऑफ टर्म्स व्हिच आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन द आर्किटेक्चरल वर्ल्ड, इन द डिजाइन वर्ल्ड, इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड. तो उन टर्म्स पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. या तो डायरेक्ट आते हैं, यू आर गिवन अ टर्म, उसका मतलब बताना होता है, उसके लिए फ्रेज बताना होता है, या फ्रेज से एग्जैक्ट टर्म बताना होता है. एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज एडेड इन द नाटा एग्जामिनेशन इज, आई हैव एडेड एग्जांपल फॉर यू गाइस. तो यहाँ पे यू नीड टू चूज द मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल टर्म्स, है ना. तो जैसे इसमें तुम्हें 8 टर्म्स दे रखे हैं, तो तुम्हें इसमें से सेलेक्ट करने हैं वो 4 विच आर प्रेजेंट इन द इमेज. ठीक है. सो इन सब का बेसिकली तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए सारे टर्म्स का, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो दैट इज व्हाई जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आर्किटेक्चर में सबका तुम्हें मीनिंग एंड विजुअली इमेज से भी तुमने एग्जांपल भी उसका देखा होना चाहिए ना. यू सपोज ट्यूबुलर स्टील है, तो मीनिंग से क्या, मीनिंग सबको पता चल रहा है कि स्टील है और ट्यूबुलर है, बट उसका इमेज देखा होना चाहिए. इफ यू हैव सीन द इमेज, इफ यू नो हाउ इट लुक्स लाइक, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट सच अ क्वेश्चन. सेम फॉर ऑल द अदर टर्म्स. सो अगेन इसमें काफी सारे टर्म्स होते हैं, तो स्टिल अगर तुम पूरा महीने में इसको डिवाइड करो और डेली इसको तुम थोड़ा थोड़ा टाइम दो, डेली अगर तुम आइल से 30 मिनट्स भी दो अगेन इसमें, 1 मंथ में तुम बहुत सारे जो भी मेन टर्म्स आ सकते हैं एग्जामिनेशन में सारे कवर कर लोगे. ओके. सो इसके बाद आता है हमारा विजुअलाइजेशन, विच इज अप्रॉक्सीमेटली फॉर 8 to 12 मार्क्स. इसमें सारे 2 मार्कर्स आते हैं. ऊपर जो हमने देखा आर्किटेक्चरल टर्म्स, इसमें भी 2 मार्कर्स आते हैं. उससे पहले हम जो भी देख रहे थे वर्बल एबिलिटी एंड जो भी इससे ऊपर चल रहा था, सब 1 मार्कर्स थे. यहाँ से 2 मार्कर्स स्टार्ट हो गए. बिल्डिंग एनाटॉमी इज 2 मार्कर, देन दिस विजुअलाइजेशन इज अगेन 2 मार्कर. इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक दिस, यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, सरफेस काउंटिंग, क्यूब काउंटिंग, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एंड अगेन इसके लिए तुम्हें पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो क्लासेस के थ्रू, किसी गाइडेंस के थ्रू होता है. देन बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए तुम्हें मटेरियल चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म चाहिए, जिससे तुम बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सको. So yes, all these type of questions are there, and again सारे 2 markers आते हैं, तो you can expect around 4 to 6 questions from this particular topic. Guys, in our institute we provide you with all these things. We teach you according to the latest examination pattern, and we have very brilliant scores also in the JEE first attempt. And definitely I would recommend all of you to attend some demo classes from us, and you'll surely be able to benefit a lot and increase your score a lot as per your potential in both the examinations, NATA as well as the JEE examination. ओके. सो लेट्स कम बैक टू फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स. ठीक है. तो फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. उसमें क्या आता है, लोकेशन ऑफ बिल्डिंग पे आता है, लोकेशन ऑफ मॉन्यूमेंट पे आता है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी होती हैं जो मॉडर्न टाइम की हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स भी होते हैं, आर्किटेक्चरल फीचर्स पे आता है बिल्डिंग के, उसके आर्किटेक्ट के नाम पे आता है, टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे पहले कौन सा बना है, बाद में कौन सा बना है, इन विच ईयर तो नहीं, बट दे आस्क द ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन, विच इज ओल्डर, विच इज न्यूअर. फेमस बुक्स एंड कोट्स बाय आर्किटेक्ट्स जो हैं, उन पे भी तक क्वेश्चंस आते हैं कि विच दिस फेमस बुक इज रिटन बाय विच आर्किटेक्ट, और दिस फेमस कोट इज बाय विच आर्किटेक्ट. अगेन फेमस बिल्डिंग्स ऑफ एन आर्किटेक्ट, इंडियन आर्किटेक्ट्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. जो फेमस इंडियन आर्किटेक्ट्स है टॉप 10-12, उसमें पूछते हैं कि कौन सी बिल्डिंग इनकी है, मैच करो, मैच द फॉलोइंग में बहुत आता है. यू आर गिवन 4 बिल्डिंग्स, बताना होता है कौन से 4 आर्किटेक्ट्स होंगे. सो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे ट्विस्टेड और काफ़ी सारे वेज में क्वेश्चंस आते हैं. सो अगेन इसमें तुम्हें काफ़ी सारा लर्न भी करना पड़ता है. दिस इज मोर अबाउट लर्निंग. इसमें तुम्हें रट्टा तो नहीं मारना है, बट स्टिल यू नीड टू लर्न द इमेजेस, लर्न द नेम्स, लर्न द प्लेसेस. तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, थोड़ा रट्टा है, थोड़ा सा इमेज वाला भी याद करना है. सो अगेन ड्यू टू इट बीइंग अ लार्ज टॉपिक, डेली तुम्हें 1 to 1.5 आवर्स देने हैं टू फेमस आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स. एंड डेफिनेटली अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे या कुछ किसी भी अच्छे सोर्स से, अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं स्टडी मटेरियल या कुछ नहीं रेफर करोगे, तो यू विल फाइंड एंडलेस नंबर ऑफ बिल्डिंग्स.
सो तुम्हें लर्न वही करना है जो एग्जाम में आता है 99 एटलीस्ट, यू नो, इफ यू आर लर्निंग द राइट बिल्डिंग्स एंड राइट आर्किटेक्ट्स, तो तुम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आना है इससे, उसमें से 95% तो वही आएगा। डेफिनेटली 5% चांसेस रहते हैं कुछ अलग कुछ नया आ जाए, बट 95% विल बी डेफिनेटली सेम। दिस आई एम टेलिंग फ्रॉम, यू नो, द पर्सनल एक्सपीरियंस, जिन्होंने बच्चों ने भी एग्जाम दिया है, लास्ट ईयर्स भी दिए हैं। So if they study, the students who are serious and study each and everything अच्छे से, attend all the classes, learn all the things that are told in the classes, they find the questions are from that only. आगे चलते हैं टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अगेन ये हर एग्जाम में आता है, मतलब नाटा जेई के, अब वैसे भी ऑल इंडिया जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स तो आता ही आता है। सो नाटा एग्जाम में भी 4 से 6 मार्क्स का यूजुअली ये सारे 1 मार्कर्स आते हैं। इसके लिए व्हाट यू कैन डू, मैगजीन्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, इंस्टाग्राम पे ऐसे यूजफुल पेजेस फॉलो करो, आईडीज फॉलो करो। हम क्या करते हैं, हाउ वी हेल्प यू आउट इन दिस, नॉट यू विद आवर स्टूडेंट्स। सो वी गिव अ डेली टेस्ट सीरीज। डेली टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना, ये सारे जो क्विजेस तुम्हें दिख रहे हैं डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं। एंड व्हाट डज इट हैव, इट हैज़ 3 थिंग्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड आर्किटेक्चरल अवेयरनेस। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से पढ़ें, तो दैट इज वाई वी गिव यू दिस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि तुम डेली मोर नॉलेज लो, डेली मोर नॉलेज गेन करो, एंड डेफिनेटली क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उन्हें क्रैक कर पाओ। सो यू नो, दिस इज आवर LMS प्लेटफॉर्म विच इज एवरीथिंग। वी गिव यू डेली टेस्ट, वी गिव यू ऑल द स्टडी मटेरियल, वी गिव यू मॉक टेस्ट ऑल्सो। आई शो यू वन ऑफ द मॉक टेस्ट ऑल्सो टू गिव you an idea. So this works via a website and an app so that all the students can easily and comfortably study from here. तो बेसिकली ना हमने मॉक टेस्ट की बात करी है, तो मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो वंस यू आर डन विद द सिलेबस, एटलीस्ट 10-20 मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले दे के जाना ऑन एवरीडे बेसिस, या फिर एक दिन में 4 भी दो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एन आइडिया ऑफ योर प्रिपरेशन लेवल एंड टू, यू नो, एक एग्जाम जो 3 घंटे का तुमने जाके देना है, अगर तुम सेम वैसा ही पहले घर पे 2-4 दिन 10 दिन प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो डेफिनेटली मार्क्स तुम्हारे एग्जाम में इंप्रूव होते हैं। यू लर्न द टाइम मैनेजमेंट, यू गेट दैट फीलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। सो वो मॉक टेस्ट देना एग्जाम जैसे अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। We do provide approximately 20 to 30 mock tests before the examination, NATA examination, so that you can prepare in that way. अगेन जैसे जनरल नॉलेज करंट अफेयर होता है, वैसे ही फेमस लोगोज भी होता है। इसमें भी तुम्हें क्या लोगो, एक तो हो गया जनरल अवेयरनेस की भी बात है। इफ यू हैव सीन द कार्स रनिंग ऑन रोड, इफ यू सी द बिल्डिंग्स दैट आर देयर, द कंपनीज दैट आर देयर ऑन रोड्स, तुम अगर इंटरनेट भी चलाते हो, बुक्स भी पढ़ते हो, देन यू नो द फेमस लोगोज। तो इसमें भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज पे ही बेस्ड है। यू गेट इमेजेस, लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। ऑड वन आउट भी आता है। फॉर एग्जाम्पल गिवन 4 लोगोज, जैसे उसमें से 3 कार्स के हैं और एक सपोज तुम्हारा कंप्यूटर का है, जैसे एक HP का लोगो है और एक टोयोटो का, एक टोयोटा का, एक सुजुकी का सपोज, एंड एक फोर्ड का, ठीक है। तो डेफिनेटली उसका ऑड वन आउट कौन सा होगा, HP होगा, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ब्रांड, है ना। सो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं अगेन जो जनरल तुम्हारा अवेयरनेस को टेस्ट करते हैं। इसके लिए भी एक ही तरीका होता है, ज़्यादा पढ़ो, और एक होता है प्रैक्टिस करो, मतलब फेमस लोगों के टेस्ट दो, ज़्यादा नॉलेज गेन करो। दैट इज हाउ वी ऑल्सो प्रिपेयर द स्टूडेंट्स एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। अगला टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, विच हैज़ अ गुड नंबर ऑफ वेटेज। यहाँ पे वेटेज नहीं लिखा है, बट यू कैन एक्सपेक्ट मार्क्स अराउंड 10 to 15 इन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइज। एक थ्योरेटिकल जिसमें पूछा जाता है, अगेन सी मॉन्यूमेंट्स भी ना कई हिस्ट्री के ही पार्ट होते हैं। सो जो फेमस बिल्डिंग्स के भी क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी हिस्ट्री से भी आते हैं। सो हिस्ट्री एंड फेमस बिल्डिंग्स आर कहीं ना कहीं रिलेटेड ऑल्सो। सो यू हैव फेमस बिल्डिंग्स, so you have history of architecture के काफ़ी सारे questions in the examinations, identifying the eras, identifying the features of the eras, different buildings पे आते हैं। image based भी नाटा में आते हैं। उसमें क्या रहता है, basically you are given drawings, plan of a building, section of a building, and they ask you to identify the features of that plan, ठीक है। तो दैट इज वाई हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को भी डिटेल में पढ़ना इस काम काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेट मी शो यू क्या हिस्ट्री में तुम्हें पढ़ना है। सो गाइज दीज आर द मेजर टॉपिक्स इन हिस्ट्री। एक होता है इंडियन आर्किटेक्चर, जिसमें तुम्हें ये सारे टाइप ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पढ़नी है, उनके स्टाइल्स पढ़ने हैं। फिर आता है वेस्टर्न आर्किटेक्चर, जो इंडिया के बाहर का, वो भी पूरा एक तुम्हारा टाइमलाइन फॉलो होकर चलता है, तो उसको भी डेफिनेटली सारे टॉपिक्स को तुम्हें अच्छे से स्टडी करना होता है। ये सारी ई बुक्स हैं, इफ आई ओपन वन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल अगर इजिप्शियन आर्किटेक्चर हम देखें, सो दिस इज व्हाट वी यूज टू टीच। जो आर्किटेक्ट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, दे टीच यूजिंग दीज PDFs। सो विल फाइंड दीज आर वेरी लिमिटेड, मतलब एकदम जो तुम्हें पढ़ना है वही है, ना ज़्यादा है इसमें ना कम है। सो तुम्हें लिमिटेड ही पढ़ना है, बिकॉज इजिप्शियन आर्किटेक्चर इज वेरी वास्ट। बट एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देन कम्स द मेजर मटेरियल्स दैट आर देयर, देन यू हैव द मेजर टाइप्स, द स्टाइल्स, जिसमें फीचर्स है वो आते हैं। फीचर्स के बाद यू डायरेक्टली कम टू द, ये फीचर्स खत्म हुए, you come to the type of, these are the type of buildings that are there, which again can be regarded as features only. फिर features के बाद
तुम्हारा स्टार्ट होता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट आर देयर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी, उनके प्लान्स, उनकी इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स। सो लिमिटेड तुम्हें पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। टू टेल यू ब्रीफली, जो खुद से सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपेयर भी कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में गाइस। व्हाट यू नीड टू स्टडी इज फर्स्ट उसका एकदम बेसिक इंट्रो कि कब स्टार्ट हुआ, किस एरा का है। देन यू कम टू द मेन आर्किटेक्चरल फीचर्स, उसमें क्या क्या फीचर्स रहे हैं। एंड द थर्ड इज द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स दैट आर देयर। ये तीनों चीजें ही कवर करनी है, इसके अलावा और चीजें पे नहीं जाना है। और इसमें भी लिमिटेड, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में भी इंपॉर्टेंट ही लेनी है, ऐसा नहीं जितनी गूगल पे सारी पढ़नी है, ठीक है। सो यू नीड टू स्टडी अकॉर्डिंग, राइट। तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के बाद आता है सारे 2 मार्कर्स होते हैं हिस्ट्री, ये दोनों 1 मार्कर्स हैं, जनरल नॉलेज, फेमस लोगोस, बाकी फेमस आर्किटेक्ट्स, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, ये सारे 2 मार्कर में आते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, इसमें क्या होता है, दे टेस्ट योर बेसिक नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, लाइक व्हाट आर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर फ्रेम स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन में स्टेयरकेस पे क्वेश्चंस, डोर पे क्वेश्चंस, विंडोज पे क्वेश्चंस। सो उसका भी सिलेबस है, लेट्स नॉट सी एवरीथिंग इन डिटेल, बट हाँ, कंस्ट्रक्शन की जो बेसिक चीजें हैं विच यू शुड नो, विच आर the basic part of architecture basically, that you need to study. Building materials जो major हैं like glass, bricks, you have concrete, you have steel, इन पे questions आते हैं, you know, type of iron पे question आते हैं। So basic construction, basic materials जो architecture से related है उसकी भी अच्छी knowledge होनी चाहिए। मान लो वही 6 to 10 या 12 मार्क्स का भी आ सकता है, तो वही 4 to 6 questions आते हैं और सारे 2 मार्कर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें कितना तुम टाइम दोगे? अच्छा, हिस्ट्री में हमने टाइम, हिस्ट्री इज वेरी वास्ट, आई शोड यू वेस्टर्न आर्किटेक्चर के भी इतने सारे टॉपिक हैं, इंडियन के भी इतने सारे टॉपिक हैं। अगेन 2 घंटे तुम हिस्ट्री को डेली बेसिस पे देने ही देने हैं, देन ओनली यू कैन फिनिश द सिलेबस बाय द नाटा फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी चाहे इसमें मार्क्स कम हो, बट सिलेबस इसका भी वास्ट है, इसको भी तुम्हें 1.5 आवर्स डेली बेसिस पे निकालना ही पड़ेगा। आई नो काफ़ी सारा टाइम एडअप होता जा रहा है, बट यू नो अब 1 मंथ ही बचा है, तो डेफिनेटली टाइम जो तुम दे रहे हो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए डेली बेसिस पे, वो इंक्रीज होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। ये एक टॉपिक है जो नाटा में जब से ड्राइंग हटा है, जब से ऐड हुआ है। सो एलिमेंट्स प्रिंसिपल्स पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली मल्टीपल सेलेक्ट आते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आते हैं इसमें, जैसे यू नो यूर गिवन द प्रिंसिपल्स, मैच करना है तुम्हें कि किसका क्या मतलब है, तो सारे का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस लाइक दिस, आइडेंटिफाई द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल एलिमेंट्स प्रिंसिपल्स इन द गिवन कॉम्पोजिशन। तो जितने भी, ये तो कुछ ही हैं जो एक क्वेश्चन में, बट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो यू नीड टू लर्न एंड स्टडी द मीनिंग पिक्टोरियली, केवल मतलब मीनिंग थ्योरेटिकल से नहीं चलेगा, मतलब तुम्हें इमेज में देखना आना चाहिए कौन सा प्रिंसिपल है, विच प्रिंसिपल इज देयर, विच प्रिंसिपल इज नॉट देयर। सो इस लेवल पे यू नीड टू डीपली अंडरस्टैंड ऑल द एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, बिकॉज इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना, रीड हियर केयरफुली, मार्क्स विल ओनली बी अवॉर्डेड इफ ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। तो सारे आंसर जो तुमने 4 चूज करें सही होने चाहिए, देन ओनली यू विल गेट 2 मार्क्स, या तो 2 या तो 0। दैट इज वाई डिटेल में, डेप्थ में सारे प्रिंसिपल्स पढ़ना फ्रॉम अ आर्किटेक्ट, या आर्किटेक्ट ही तुम्हें अच्छे से पढ़ा सकता है जिसको एक्चुअली में नॉलेज है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन आवर इंस्टीट्यूट आल्सो। सो आफ्टर स्टडीइंग इट फ्रॉम एन आर्किटेक्ट, द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग देम इन डेप्थ, एंड देन अगेन प्रैक्टिस तो चाहिए, केवल पढ़ने से कभी नहीं चलता। उसका बहुत सारे टेस्ट दो, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, बहुत सारा प्रैक्टिस करो, देन यू कैन थिंक कि सपोज अगर ये 10-15 मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है, तो इसमें से मैं 8-10 मार्क्स आई कैन स्कोर। Okay, let's move forward. Color theory. This is something I can say. अच्छा, इसमें टाइम कितना देना है? Sorry, I forget that. So टाइम तुम इसमें दो, अगेन थोड़ा वास्ट है, बट 1 to 1.5 आवर्स तो देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ऑल द प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, ताकि तुम स्कोर कर सको गुड इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट कम्स आर कलर थ्योरी। कलर थ्योरी, पर्सपेक्टिव थ्योरी ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत लिमिटेड कंटेंट है। टोटल, आई एम टेलिंग, टोटल यू गिव 6 to 8 आवर्स, टोटल, एक दिन का नहीं बता रहा, टोटल 6 भी बहुत है, यू नो 4 to 6 एक्चुअली, 6 to 8 भी रहने दो, यू गिव 4 to 6 आवर्स, 6 आवर्स दे दो। स्टडी कलर थ्योरी, स्टडी पर्सपेक्टिव थ्योरी। सो इट हैज़ कलर प्रॉपर्टीज, कलर स्कीम्स, कलर व्हील, कलर साइकोलॉजी, कलर टर्म्स, इसमें थोड़ा लिमिटेड लिखा है, कलर टर्म्स भी होते हैं, कलर साइकोलॉजी तो है ही, प्लस कलर व्हील पे भी क्वेश्चंस आते हैं, और इवन यू नो कलर चार्ट्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ी चीज़ें और हैं, बट हाँ लिमिटेड है। 6 आवर में तुम ये दोनों खत्म कर सकते हो, बट यू नीड द राइट मटेरियल, यू नीड द राइट टीचर, देन यू कैन डेफिनेटली डू दिस एंड स्कोर गुड इन द एग्जामिनेशन। स्पॉट द डिफरेंसेस फिगर्स, ये भी नाटा में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन 2 इमेज दे रखी नाटा के, जो सारे क्वेश्चंस तो मैं दिख रहे हैं एग्जाम्पल में ना, नाटा प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही हैं, नथिंग वी हैव टेकन फ्रॉम इंटरनेट, नाटा के प्रीवियस ईयर पेपर्स से ही आई एम शोइंग इट टू यू। सो हाउ मेनी डिफरेंसेस आर देयर इन द पिक्चर, ये कहीं ना कहीं एक जनरल, जो तो यू नो यू बचपन में मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में तो बच्चे करते हैं, द काइंड ऑफ दोज क्वेश्चंस हैं, तो इसमें तुमने जैसे 7 है, तो अगर तुमने 7 लिखा, ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, तो यू गेट 2 मार्क्स, अदरवाइज यू गेट 0 मार्क्स, ठीक है।
और यहाँ कलर थ्योरी, पर्सपेक्टिव थ्योरी के भी सारे क्वेश्चन 2 मार्क कराते हैं, स्पॉट द डिफरेंसेस के भी 2 मार्क कराते हैं। ओके ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, स्पॉट द डिफरेंसेस फिगर्स में क्या होता है ना, सपोज बहुत सारे आउल दे दिए और एक आउल की आंख खुली है, बाकी सबकी बंद है, तो स्पॉट करो विच वन हैज द आईज ओपन। ऐसे भी वही किड टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अगेन इसमें तुम्हें क्या करना है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग। कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेन कॉन्सेप्ट नहीं है, एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट इन इट्स ओन, तो यू नीड टू प्रैक्टिस। वी डेफिनेटली प्रोवाइड। ओके, लास्ट है हमारा 30 सेकेंड क्वेश्चन जो नाटा में रिसेंटली ऐड हुए हैं इन द लास्ट ईयर्स, विच आई पर्सनली फील आर नॉट एनीवेयर रिलेटेड टू आर्किटेक्चर एज माई पर्सनल ओपिनियन। सो इसमें क्या करना होता है, यू आर गिवन अ इमेज जो 30 सेकंड्स के लिए विजिबल रहती है, डिसअपीयर्स आफ्टर 30 सेकंड्स। वंस यू स्टार्ट द क्वेश्चन 30 सेकंड्स विल बी देयर एंड इट डिसअपीयर्स। So in these 30 seconds guys you need to choose the right option. How many employees were in a blue shirt? तो what happens, कहीं ना कहीं इसमें it is based on luck also, कि जो तुमने नोटिस करा, what you observed came in the examination, हो सकता है जो करा ना भी हो। So a little bit of luck, 50% of luck and 50% of practice। तो अगर तुमने प्रैक्टिस करें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, so what happens is your visual memory increases। What you और you understand कि नोटिस करना क्या है क्वेश्चन में। जब तुमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो you know कि यहाँ कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So your mind automatically works in that way कि हाँ what to notice, what not to notice। तो डेफिनेटली हम भी ऐसे ही करवाते हैं। वी गिव अ लॉट ऑफ लाइव प्रैक्टिस क्लासेस फॉर दिस, so the students can develop that visual memory skill and that knowledge for these questions। But still I still believe 50% तो लक पे रहेगा ही रहेगा। राइट, सो वी एंड विद दिस नाटा सिलेबस। इसमें तुम कुछ डेली प्रैक्टिस तो नहीं, बट हाँ लास्ट के 2 हफ्ते रोज आधा घंटा 30 मिनट्स दो लास्ट के 2 हफ्ते में एग्जाम से पहले। दैट इज द मोस्ट यू कैन डू। ठीक है, and also guys in order to attend our free demo classes you can WhatsApp us on the given number on the screen, and to check out the details of the courses that we have for the NATA preparation you can check from our website. The link is given in the description box. Thank you guys, I hope I helped you in some way, and see you in my next video. Bye bye.